Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. कल के लेक्चर में हमने कांग्रुएंस से स्टार्ट किया था, फिर कांग्रुएंस के प्रॉपर्टीज़ वगैरह। आज के लेक्चर में हम ये थ्योरम 4.6 से स्टार्ट कर लेते हैं। वी विल स्टार्ट थ्योरम 4.6। आप देख ले थ्योरम की तरफ। If f of x is congruent to c naught c1x plus so on plus cn is a polynomial with the integral coefficient and a is congruent to b mod m, then f of a is congruent to f of b mod m. This is very beautiful theorem कि अगर f of x एक polynomial हो जिसका coefficient integral हो, c naught c1 इंटीजर हो, और अगर a b को कांग्रुएंट हो, देन f ऑफ a पर आप ये फंक्शन अप्लाई कर ले, x की जगह a पुट कर ले, देन यू विल गेट समथिंग। देन f ऑफ a इज कांग्रुएंट टू f ऑफ b मॉड m। वी हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट्स। इस थ्योरम की तरफ दोबारा देख ले कि एक फंक्शन पॉलिनोमियल है जिसकी कोएफिशिएंट इंटीजर है and a is congruent to b mod m, then f of a is congruent to f of b mod m। इस पर हम एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पहले इस थ्योरम की प्रूफ की तरफ आप देख लें। जेंटलमैन प्लीज, वी नो दैट 1 is congruent to 1 mod m. This is not minus, this is congruent. 1 is congruent to, I want to confirm from the book, but this is not minus, this one ये book में भी this is congruence notation, this is not minus. We know that 1 is congruent to 1 mod m and a is congruent to b mod m। ये कहाँ से, ये given information है ये। This is 1 is congruent to 1 mod m. Is it clear? And a is congruent to b mod m, ये given information है ये। We have to show that this one, हमें ये प्रूव करना है। Consequently, जिस तरह मैंने इससे पहले कल वाली लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि अगर a कांग्रुएंट है b मॉड m को, देन an इज कांग्रुएंट टू b a to the power n is congruent to b to the power n mod m। By that consequently a square is congruent to b square। ये a square किस तरह b square को कांग्रुएंट होगा? अगेन यूज एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का जो थ्योरम था, थ्योरम 4.2। थ्योरम 4.2 में आप देख ले a is congruent to b mod m, c is congruent to d mod m, then ac is congruent to b d mod m। अब ये कांग्रुएंस दो दफा ले ले। a is congruent इस तरह, a is congruent to b mod m and use that theorem। जिस तरह उस थ्योरम में we proved the results। आप देख ले a square is congruent to b square mod m। इसी तरह a cube b cube is congruent to b cube mod m, and so on a n is congruent to b mod m। Multiplying the above congruences by c naught c1, इसका क्या मतलब है? इस congruences को आप c naught c1 c2 cn से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करें। मीन्स ये इसको c naught से मल्टीप्लाई करे। दिस वन c naught इज कांग्रुएंट टू c naught mod m। इधर c naught आएगा, इधर c naught आएगा, इधर c1 आएगा, c1, इधर c2 आएगा, c2, इस तरह c3 c4, इधर आएगा cn। समझ में आया? एंड देन एडिंग, अब इसको ऐड कर ले जिस तरह हमने वी हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट। इफ a is congruent to b, a is congruent to b, c is congruent to d किसी मॉड m में, ये याद रख ले,
ये एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है थ्योरम 4.3 में फर्स्ट पार्ट, आपको याद होगा। आई नीड योर अटेंशन जेंटलमैन प्लीज। मॉड एम, इधर मॉड एम होगा, इस तरह मॉड एम, तो फिर ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी। So adding these congruences, this is C naught, this is C1, C naught, C1a, C2a square, C3a cube, ये इस तरह आएगा। अगर आप इसको याद ऐड कर ले तो इस साइड पर आएगा C naught प्लस C1a प्लस C2 a square up to so on Cn a की पावर n is congruent to C naught plus C1b plus C2b square। अभी ये किसके बराबर है? C naught C1a C2 square। अगर आप देख ले C naught a, इधर a है इधर a स्क्वायर है, तो ये f ऑफ a के बराबर होगा। सो दिस साइड इज इक्वल टू f ऑफ a एंड दिस साइड इज इक्वल टू f ऑफ b। देयरफॉर f ऑफ a is congruent to f of b mod m, which proved the required result, gentlemen. So this proved the required results. The above theorem shows that we can add, subtract and multiply the congruence like equations, but the division by common factor is not always possible. Is not always possible. इसका मतलब ये है, the above theorem shows that we can add, subtract and multiply the congruence like equations. ये इक्वेशन की तरह हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट द डिवीजन बाय अ कॉमन फैक्टर, लेकिन हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। But the division by a common factor is not always possible. May be possible, but not always possible. This partial similarity between the congruence and the equation is the reason that Gauss adopted the notation. ये डिफरेंस जो है मतलब है हम इक्वेशन की तरह इसको ऐड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट द डिवीजन बाय अ कॉमन फैक्टर इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। लेकिन इसका डिवीजन हम ऑलवेज नहीं कर सकते। सो इसमें ये थोड़ा सा इक्वेशन और कांग्रुएंस इक्वलिटी ऑफ इक्विवेलेंस, ये कांग्रुएंस और इक्वेशन में फिर ये फर्क है। दिस पार्शियल सिमिलरिटी बिटवीन द कांग्रुएंस and the equation is the reason that Gauss adopted the notation. यही वजह, that was the reason that Gauss adopted this notation instead of equality. Instead of equality, जिस तरह हम equation में equality use करते हैं। We now proceed to exhibit subsample application of the congruence. Now we are going to a very important example, very applicable example of today's lecture. जिस तरह मैंने पहले क्लासों में एक्सप्लेन किया था कि हम इंटीजर को जिस तरह कैलकुलेटर नहीं कर सकते, बट बाय नंबर थ्योरी, बाय सम स्पेशल फंक्शन, बाय सम स्पेशल theorems you can solve that problem. Now let's see here. ये है एग्जाम्पल। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 21 is divided by 8। रिमाइंडर फाइंड कर ले, जब 3 to the power 21 को हम 8 पर डिवाइड कर ले तो क्या ये 3 to the power 21 पूरा 8 पर डिवाइड होता है या इससे कोई रिमाइंडर बच जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव
दिस एग्जाम्पल। अब ये है द सब्जेक्ट एस टू फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव, इधर है टू फाइंड, इसमें ये मिसिंग है ज़रा, टू फाइंड हमारा टारगेट यही है, इज टू फाइंड द लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज ऑफ 3 to the power 21 मॉडुलो 8, कि हम मॉडुलो 8 में सबसे छोटा नॉन नेगेटिव रेजिड्यू 3 power 21 का मालूम कर ले। रेजिड्यू क्या होता है? अगर if A is congruent to B mod M, अगर A is congruent to B mod M, then B is called the residue of A and A is called is the residue of B। अभी हमने मॉड 8 में इस तरह 0 से लेकर 7 तक एक इंटीजर मालूम करना है जिसको ये 3 to the power 21 कॉन्ग्रुएंट हो। इसका मतलब ये है वही इसका रिमाइंडर होगा। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं भाई अगर हम 17 को 7 पर डिवाइड कर ले रिमाइंडर क्या बच जाता है। अभी आप देख ले, इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इस फॉर्म में। 3, अगर 17 को हम फॉर एग्जांपल 3 पर डिवाइड कर ले, 3 पंजे 5, 15, द रिमाइंडर इज 2। इसका मतलब ये है, इन अदर वर्ड्स 17 मॉड 3 में किसको कॉन्ग्रुएंट है? दिस वन 2, so 2 mod 3, so this is the remainder actually, this is the remainder. If we subtract this integer from this one, then 3 this mod will divide that. Therefore हमारा टारगेट इस क्वेश्चन में क्या है कि हम ये फाइंड कर ले कि 3 to the power 21 mod 8 में 3 to the power 21 mod 8 में किसको कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये किसको mod 8 में कौन सी इंटीजर को कॉन्ग्रुएंट है, दैट विल बी द रिमाइंडर। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया कि अगर हम 17 को 3 पर डिवाइड कर ले तो रिमाइंडर क्या बच जाता है? 2। तो इसका मीनिंग है कि 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 3। इस वजह से the object is to find the least non-negative residues of 3 to the power 21 modulo m. Now let's see here. Let's see here. 3 square क्या बन जाता है? 9. This question is simple. Sometime it is not simple, but here the example is simple. 3 square 9. 9 is congruent to 1 mod 8. Because 8 divides 9 minus 1. So 3 square is congruent to 1 mod। अभी therefore इसकी पावर ले ले ऊपर, जिस तरह में अभी मैंने पहला थ्योरम एक्सप्लेन किया है कि अगर A is congruent to B mod M, याद है आपको? तो इधर फिर हमने पावर n लिया, अगर आपको याद है n एनी पॉजिटिव इंटीजर, इधर n मैंने अभी 10 लिया है, 2 10 मैं क्यों लेना चाहता हूं 10, इधर 21 है तो 2 10 20, तो 3 to the power 20 is congruent to 1 to the power 10, या 3 to the power 20 is congruent to 3 to the power 20 is congruent to 1। अब इधर 3 power 21 होना चाहिए, तो दोनों साइडों को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाइंग बाई 3। जिस तरह कॉन्ग्रुएंस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि A is congruent to B mod M, then NA is congruent to NB mod M, where N and M are relatively prime. So 3 और 8 का greatest common divisor 1 है, multiplying both this side by 3 we get 3 to the power 21 is congruent to 3 mod 8, hence 3 is the remainder। अभी अगर आपके पास कैलकुलेटर है और अगर आपके कैलकुलेटर 3 to the power 21 कैलकुलेट कर सकते हैं तो 3 to the power 21 कैलकुलेट कर ले, उससे एक फिगर आएगा, जो हिंसा आएगा इधर उस फिगर से 3 सब्सट्रैक्ट कर ले, ये 3 सब्सट्रैक्ट कर ले, ये फॉर एग्जांपल ये k आया
उसके से आप 3 सब्सट्रैक्ट कर ले, देन फिर उसको 8 पर डिवाइड कर ले, द रिमाइंडर विल बी 0, मीन्स दैट इंटीजर विल बी टोटली डिविजिबल बाय 8। इसमें लॉट ऑफ एग्जाम्पल आप कोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 4, अगर हम 8 पर डिवाइड कर ले क्या रिमाइंडर बनेगा? 4 टू द पावर 3। अगर हम 13 पर डिवाइड कर ले रिमाइंडर क्या बनेगा? व्हाट इज द रिमाइंडर? इस क्वेश्चन को आप किसी फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 21 इज डिवाइडेड बाय 7। आप इसमें ये ट्राई कर ले, मैं ये आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये ट्राई कर ले कि फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर 21 माइनस 9, अगर हम 8 पर डिवाइड कर ले क्या रिमाइंडर बनेगा? यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 7 टू द पावर 29, 7 टू द पावर 29 अगर हम 13 पर डिवाइड कर ले तो क्या रिमाइंडर बनेगा? रिमाइंडर बचेगा। आपने रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल एक दूसरा क्वेश्चन आप ये कर ले, 3 टू द पावर 41 को आप अगर हम 7 पर डिवाइड कर ले रिमाइंडर, a lot of question can be constructed, but you have to understand the methodology and you have to understand the techniques. This is very important. ये बहुत important है, and this is the beauty of number theory. कि नंबर थ्योरी विदाउट कैलकुलेटर वी कैन कैलकुलेट वेरी बिग नंबर्स। ये ऐसे नंबर है जो आप कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है कि 3 पावर 21, 3 टू द पावर 300, 3 टू द पावर 500, अगर हम 7 पर डिवाइड कर ले, 13 पर डिवाइड कर ले, 41 पर डिवाइड, a lot of variety exist. You can do, you can try, you have a lot of example. Now this is your responsibility and your interest. This is another beautiful example. F of x is equal to, ये पॉलिनोमियल है, x की पावर 4, I think this is plus or minus, plus 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर है के पावर 4 प्लस स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ये f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है। देन फाइंड द रिमाइंडर, एक रिमाइंडर फाइंड कर ले क्या? व्हेन f ऑफ 15 is divided by 7. Now this is very important and beautiful. अभी एक पॉलिनोमियल है, x के पावर 4 है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 2x माइनस 1। नाउ लेट्स सी, दिस इज अ वेरी ह्यूज पॉलिनोमियल। अभी अगर आप f15 इसको इस तरह कैलकुलेट करना चाहे, इट विल नॉट सिंपल। इस वजह से आप थ्योरम यूज करेंगे। f ऑफ 15 आपके पास क्या बनेगा? दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज लिटिल बिट बट मोर कॉम्प्लिकेटेड जेंटलमैन। 15 टू द पावर 4 प्लस 3 into 15 to the power square and up to so on, plus 2 to the into 15 minus 1। देन आप इसको फाइंड कर ले पहले, फिर बाद में 7 पर डिवाइड कर ले। दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। इस वजह से हम वही थ्योरम, वी विल यूज थ्योरम, we determine the least non-negative residues of f of 15 मॉडुलो 7। हमने एक्चुअली वही फाइंड करना है कि आप f of 15 मॉडुलो 7 में किस इंटीजर को कांग्रुएंट है। f of 15 ये है, इससे एक इंटीजर आएगा, वही इंटीजर किस इंटीजर को मॉड 7 में कांग्रुएंट है। अभी f of 15 कैलकुलेट करना इज नॉट सिंपल, देयरफॉर वी विल यूज थ्योरम। जिस तरह पहले थ्योरम, कौन से वाला थ्योरम आपको याद होगा? थ्योरम 4.6 अपनी बुक में देख ले कि एक पॉलिनोमियल गिवन हो, अगर ए बी को कांग्रुएंट हो तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को कांग्रुएंट होगा। वेरी सिंपल जेंटलमैन, डियर स्टूडेंट्स, आई नीड योर अटेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल। We determine the least non-negative residues of f of 15 modulo 7. Since 15 is congruent, ये आपके पास वो a है,
15 is congruent to 1 mod 7. ये हमें पता है कि 7 divides 15 minus 1. Therefore, according to theorem 4.6, if A is congruent to B mod M, then f of A is congruent to f of B. Therefore, f of 15 is congruent to f of 1 mod 7. अभी f of 15 के बजाय f of 1 कैलकुलेट कर ले. This is very simple. But f of 1 किसके बराबर है? 1 के 4 minus 3, ये माइनस है आई थिंक. अभी पता चलेगा कि ये माइनस है या प्लस है. 1 के 4 3 2 तो 2 minus 1 1 minus 3 minus 2 plus 2 कैंसल 1. बिल्कुल ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, बुक में ये मिसिंग है, ये माइनस है. सो -1 आएगा. देयरफॉर f of 15 is congruent to -1. लेकिन याद रख ले हमने पॉजिटिव कैलकुलेट करना है. अभी -1 mod 7 में किसके बराबर है? -1 mod 7 में किसके बराबर है? इसकी दो प्रोसीजर है. इधर अगर आपके पास माइनस आ जाए तो उसके साथ 7 या 7 का मल्टीपल ऐड कर ले. अगर फॉर एग्जाम्पल ये अभी -8 हो तो -8 के साथ आप 7 जमा कर ले, फिर -8 के साथ आप 7 जमा कर ले, फिर यू विल गेट -1. लेकिन अगर -8 हो, अगर -7 से ये बड़ा हो, -6 से ये बड़ा हो, तो फिर आपका 7 मल्टीपल कैलकुलेट कर ले. इस केस में ये सिंपल है, -1 के साथ 7 जमा कर ले तो 6. So 6 is the remainder because it is clear. Another way, this is mod 7. This is mod 7. 7 divide -1 minus 6. अगर ये -1 हो, -2 हो, -3 हो, -4, -5, -6, then या -7, you can add 7 simple. अगर ये -8 या -9 या -10 आ जाए, then you have to add the multiple of 7. 7 दूनी 14, फिर 14 को अगर बहुत ज्यादा हो 21, इस तरह आपने ऐड करना है. सो द रिमाइंडर इज 6. यू 6. इसका मतलब ये है अगर हम f of 15 को 7 पर डिवाइड कर ले, द रिमाइंडर इज 1. आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं अपने डिजिटल कैलकुलेटर से. ये सिंपल है, f of 15 कैलकुलेट कर ले, 7 पर डिवाइड कर ले, आपके पास रिमाइंडर 6 आ जाएगा. या अगर इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते, f of 15 कैलकुलेट कर ले, ये एक हिंस आएगा. इट विल गिव अस अ नंबर, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट नंबर 6 उस नंबर से सब्सट्रैक्ट कर ले, एंड दैट डिवाइड बाय 7, इट विल बी 0 रिमाइंडर मीन्स वही इंटीजर इज फुल डिविजिबल बाय 7. सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दैट थ्योरम. It follows that f of 15 is congruent to 6 mod 7. Hence, 6 is the remainder when f of 15 is divided by 7. Show that an integer written in the decimal system is divisible by 9 if and only if the sum of its is divisible by 9. ये भी एक दूसरा टेस्ट है, ये आपने खुद करना है कि डिफरेंट टेस्ट है नंबर्स के लिए कि ये नंबर 2 पर डिविजिबल होगा या नहीं होगा. इसके बाद मैं वही एक्सप्लेन करना चाहता हूं. ये आपने खुद कर एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज आप लोगों ने करना है. इसमें मैंने थोड़ा सा एडिशन करना है आप लोगों को कि फॉर एग्जांपल डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये याद रख ले. मेरे ख्याल में ये बुक में ये नहीं है, इसमें सिंपल एग्जाम्पल में 3 पार्ट है. पार्ट 3, ये पार्ट 3 आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है. दिस इज सिंपल, लेकिन मतलब ये है कि एक इंटीजर कब 9 पर डिविजिबल होगा. एक बड़ा इंटीजर गिवन है तो कब 9 पर डिविजिबल होगा. अगर उसकी हिंसा आप ऐड कर ले और वो 9 पर डिविजिबल हो, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक हिंसा लिखना चाहता हूँ तो आपको पता चलेगा कि इसका मीनिंग यही है. इस 3 पार्ट का मीनिंग यही है. फॉर एग्जांपल 3 2 1 1 1 3 3 2 5 5 3 8 1. अब ये हिंसा according to this will be divisible by 9 because 1 plus 1 2 2 plus 1 3 3 plus 1 4 4 plus 2 6 6 plus 3 9. अगर इस हिंसे का सम
9 पर डिविजिबल हो, द फिगर विल बी, होल फिगर विल बी डिविजिबल बाय 9। अभी 8 के लिए कौन सा टेस्ट होगा? 8 के लिए इस बुक में नहीं है, आप याद रख ले। अब एक फिगर लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला 4356, last 3 digits. If this is divisible by 8, then the whole figure will be divisible by 8. अभी हम इसको ट्राई कर लेते हैं। If I am not wrong, this figure is divisible by 8 because this one. This is इसका आंसर आ जाता है, अगर आप इसको 8 पर डिवाइड कर ले तो 5 3 8 2 8 45 8 3 24, फिर 8 8 64 8 2 16। 7 के लिए टेस्ट नहीं है इस तरह प्रॉपर। 6 के लिए एक टेस्ट है कि एक नंबर 6 पर कब डिविजिबल होगा, अगर वह 2 पर भी डिविजिबल हो और 3 पर भी डिविजिबल हो। अभी 2 पर कब डिविजिबल होगा? If the unit digit is even, if the unit digit is even, 3 पर एक नंबर कब डिविजिबल होगा? If the sum is divisible by 3, for example 1 1 1, this is divisible by 3, 1 और 1 2 2 और 1 3 3 is so now इसको 3 पर डिवाइड कर ले, 3 3 9 और 3 से 21। 3 का टेस्ट ये है। 2 का टेस्ट क्या है? If the unit digit is 0 even। 4 के लिए कौन सा टेस्ट है? 4 के लिए if the last 2 digit, for example ये 5 6 5 6 5 3 8 9 16, अभी ये लास्ट डिजिट ये नहीं है 16, दिस इज डिविजिबल बाय 4, सो द होल डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। ये 4 के लिए टेस्ट है। 2 के लिए हुआ, 3 के लिए हुआ 2 पर डिविजिबल इफ द यूनिट डिजिट इज इवन 0 2 4 6 8। 3 के लिए इफ द सम इज डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जांपल दूसरा लिख ले 6 2 6 2 8 8 और 4 12। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 4 और 2 6 6 और 6 4 into 2 6 6 is 12, 3 divides 12, so this is number divisible by 3। 4 इस तरह 5 के लिए मेरे ख्याल में अगर यूनिट डिजिट 5 के लिए भी इस तरह कोई टेस्ट मुझे याद नहीं है, शायद ये ऑड नंबर के लिए। लेकिन 0 10 पर कब डिविजिबल होगा? 10 पर अगर यूनिट डिजिट 0 हो। 5 और 7 के लिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 5 और 7 के लिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ये आप लोग देख ले, ये 0 की 1 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 6 8 9 10 11 पर कब डिविजिबल होगा? ये मुझे थोड़ा बहुत याद है कि अगर एक इंटीजर गिवन है, इस तरह एक इंटीजर गिवन है इस तरह, तो इवन प्लेसेस पर फॉर एग्जांपल 1 है 2 है, इस तरह इंटीजर्स पड़े हैं, तो इवन प्लेसेस पर ये प्लेस ये प्लेस ये प्लेस, इस पर जो नंबर है, फिर R8 पर जो नंबर है इसको ऐड कर ले और फिर इसको ऐड कर ले और एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट कर ले। अगर इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द होल डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 11। I want to repeat divisibility test। divisibility test 2 पर कब डिविजिबल होगा? इफ द इवन डिजिट इज 0 और इवन। 3 पर कब डिविजिबल होगा एक नंबर? उस नंबर की एक नंबर गिवन होगा, उसका फिगर्स ऐड कर ले। मीन्स फॉर एग्जांपल 6 इस तरह, ये क्लियर है, इसमें इतना कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये 4 1, अभी 1 और 4 5 5 और 3 8, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। This figure is not divisible by 3 because now if we replace this 3 4
2. This is divisible by 3. 3 and 3. 3 and 3 4 बार, because 2 4 6 6 3 9. 9 is divisible by 3. पूर के लिए if this number is the last, the first two digit, this number given होगा, इसमें जो 2 digits है अगर वो 4 पर divisible हो, the whole number will be divisible by 4. 6 पर कब divisible होगा? if 3 पर भी divisible हो और 2 पर भी divisible हो. 8 पर कब divisible होगा? if the last 3 digits, ये वाला जो नंबर होगा, if that number is divisible. फॉर एग्जाम्पल इस तरह नंबर आ जाए 0 5 6, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिविजिबल बाय 8, इस तरह 8 56 फॉर एग्जाम्पल. अगर वो 3 डिजिट्स वाला इनसा अगर 8 पर डिविजिबल हो, जो भी हो, दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. 9 के लिए कौन सा टेस्ट है? आपने ऐड करना है सारे हिस्सों को, फिर उनको न करना है वो नो इन दैट वी विल ट्राई टू डिवाइड बाय 9. इफ that will be divisible by 9, then the whole number will be divisible by 9. 10 पर अब the unit digit is 0. So we reach to page 71, congruence clauses. Congruence classes 72. आज के लिए ये काफ़ी है, आज की लेक्चर के लिए, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कॉन्ग्रुएंस क्लासेस को एक्सप्लेन करूंगा. कॉन्ग्रुएंस क्लासेस आज तक ये काफ़ी है, आप लोग देख ले, इसको रियलाइज कर ले. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क मी. आज के लेक्चर में मैंने 2 एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि कोई इंटीजर गिवन हो, उसका हमने रिमाइंडर फाइंड करना हो कि इस इंटीजर को एक पॉलिनोमियल गिवन हो, उस पॉलिनोमियल में अपनी एक वैल्यू पुट करनी है, उससे जो जवाब आ रहा है कि वही आंसर किसी इंटीजर पर डिविजिबल होगा या नहीं होगा. अब दूसरा जो हमने एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है 3 to the power 21, कि इसका हमने रिमाइंडर किस तरह फाइंड करना है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अभी मैं एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, दूसरी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछ ले, जिस तरह पहले एग्जाम्पल में हमने एक्सप्लेन किया था कि फाइंड द रिमाइंडर विद 3 power 21 इज डिवाइडेड बाय 8. अगर कोई इस तरह क्वेश्चन कर ले कि अगर आप 5 to the power 19 को 7 पर डिवाइड कर ले, रिमाइंडर क्या बचेगा? अभी देख ले. 5 to the power 19 को अगर आप 7 पर डिवाइड कर ले, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? प्रोसीजर क्या करना है इधर देख ले. अभी 5 स्क्वायर किसके बराबर है? 25. 25 mod 7 में किसको कॉन्ग्रुएंट है? mod 7 में 25 - 4 21. 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 7. क्लियर? 5 स्क्वायर बिकॉज 25 से अगर हम 4 सब्सट्रैक्ट कर ले, इट डिवाइड बाय 7. सो 5 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4. नाउ दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई कर ले तो इधर आएगा, अगर आप देखते हैं इधर आएगा 5 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू, दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20. अभी 27 में किसको कॉन्ग्रुएंट है? आपको याद है ना, 20 mod 7 में किसको कॉन्ग्रुएंट है? 5 to the power 3. ये दो प्रोसीजर है, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं. 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 7. हमने इंटीजर फाइंड करना है, लीस्ट 0 से लेकर 6 तक. अभी फिर स्क्वायर ले दोनों पर, इधर b स्क्वायर इधर b स्क्वायर, 2 3 6. 5 to the power 6, 5 to the power 6 किसके बराबर होगा? 6 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 36. 36 mod 7 में किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1. 7 5 35 1 आया. अभी कहानी आसान है. 1 इधर पावर फिर ले ले 3,
इधर ले ले 3 1 के 5 6 to the power 3 3 छके 18 मीन्स 5 to the power 18 is congruent to 1 mod 7 अभी ये देख ले 1 mod 7 यदि हमारे पास 519 है तो दोनों साइड को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 519 is congruent to 5, so the remainder is 5. The remainder is 5. एक ही प्रोसीजर है। हाँ, इधर भी 20 की जगह इससे ये इस टिप से नीचे आप इस तरह भी कर सकते हैं। इधर देख लीजिए कि 5 to the power 3 is congruent to 20 mod 7 में किसको congruent है? -1 को, -1। अभी ये कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लेता है ऐसा। अभी पावर ले ले 5 power 3 whole power 6 -1 whole power 6 518 आपके पास इधर आया 518 is congruent to 1। सिमिलरली जिस इधर भी इस कैलकुलेशन से 518 1 क्या इधर भी अभी 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 519। इसका मतलब ये है अगर हम 5 to the power 19 को 7 पर डिवाइड कर ले द रिमाइंडर is 5। Similarly, you can do another example. The procedure are the same. Dear students, आप इस एग्जाम्पल को देख लें, आप our एग्जाम्पल ट्राई कर लें। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आप एक बहुत बड़ा नंबर ले सकते हैं और उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल गिवन है। अगर दूसरा पॉलिनोमियल इस तरह गिवन होता है, फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू x पावर 9 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 7। फिर क्वेश्चन ये राइज होता है अगर f of 15 को f पॉलिनोमियल में अगर हम वैल्यू पुट कर ले वी विल गेट सम नंबर। f of 17 को अगर हम 9 पर डिवाइड कर ले व्हाट विल बी द रिमाइंडर। सो यू विल ट्राई दिस एग्जांपल। आज के लिए ये कॉपी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट फ्रॉम पेज 72 congruences classes। प्लीज डियर स्टूडेंट्स टेक इट सीरियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने जो लेक्चर अभी तक एक्सप्लेन किए हैं 6 ऑनलाइन क्लासेस, 2 इस वीक में और 4 पहले 2 वीक्स में हो चुके हैं। आप इसको देख ले। वी विल ट्राई टू एक्सप्लेन द थिंग्स, बट आप लोग भी ट्राई कर ले। आप लोग इसको सीरियस ले ले, आप इसको बहुत सीरियस ले ले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अभी जब एग्जाम सर पर आ जाते हैं तो फिर मार्क्स पेपर्स दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। आप इसको अंडरस्टैंड कर ले, ट्राई कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करें, मुझे क्वेश्चन मुझसे कर ले प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी टेंशन। यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी बाय माय मोबाइल, यू कैन व्हाट्सएप योर क्वेश्चन। आप अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं वॉइस मैसेज में कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। और नेट का प्रॉब्लम भी आप लोगों का सॉल्व हो चुका है क्योंकि मैं ये लिंक शेयर करता हूँ तो आप लिंक किसी भी टाइम रात को सुबह आप डाउनलोड कर ले, उस लिंक को देख ले, अपना बुक खोल ले, अपनी कॉपी खोल दे। प्लीज I request you, please, this is very important for you, dear students. इंशाल्लाह आज के लिए ये कॉपी है। In the hope in the next we will start congruence classes from page 72. Allah Hafiz, enough for today. Thanks.